Great. So we are starting the new topic, that is SQL queries. We have completed your collection part. You know, all three collection, list, set, and map. Now we have completed all of them. You are ready with few of the basic methods of them, because most of the methods that we are going to use in the serious programmings. Okay, but you should learn all the methods. I mean, you should learn all the methods, what how to put the element, I mean, how to insert the element. So in the collections, you have add method, you have put method. Put is for your map collection, add is for list and set collection. Then there are few methods also, like how to clear and how to copy. So you should be you should learn all these methods of the collections. Clear means what, clones means what, but uh, this program is for, like, at least for the ones you could have a practice on every method, because actual practice will be done throughout the examples. Okay, because from here and onwards we are going to use collection for almost every programs. So kahin na kahin wo habitual ho hi jata hai fir. That's what the reason for, because for almost every program we will be using any type of collections for that. Now let's start with the SQL queries. The full form of SQL is Salesforce Object Query Language. The person, those who have learned Oracle, a similar kind of terminologies they have learned called as SQL. But the full form of SQL is Structured Query Language. Structured Query Language. That is what, it's a part of Oracle, it's a part of PLSQL, something like that. Here in the Salesforce, we don't call it as a SQL. Here we don't call it as a structured query language. Rather, we call it as a SQL. Salesforce Object Query Language. Why? Why we call this as to be the Salesforce Object Query Language? First of all, let's understand the definition behind this. See, this diagram, so many times I have opened this diagram. So many concepts we have learned from this diagram. So, this we have learned back, that whenever we create an object inside the user interface, what happens? A table with the same name is created. A class, a business logic class with the same name is also written, right? This is what we have learned. So we create an object onto user interface. We create the object, table is created, class is written. We create the fields inside the object. The columns are created. Simultaneously, the columns are created into table also. And the methods are written. The members are created inside the class also. That's what we have learned, into ORM, object relationship and mapping. What we have learned, every object is a class. To us, every object is a class. Account, an object. Account is also a class. Contact is an object. Contact is also a class. Hiring manager, position, candidate, campaign, cases, how any object means any standard, any custom object. Okay, that's an object, that's a class also. And what are the members? Every field inside that. Every field inside that is the member of the class. Now see, there are two different ways. Someone mic is on. Divya, okay, let me mute yourself, no problem. Mute participants on entry, and yes. Anyways, so what I was saying. Once again, भूल गया यार मैं. अरे यार, एकदम से कंसेप्ट स्लिप होता है दिमाग से. हाँ, yes, got it. चलो याद आ गया. Sorry यार, भूल गया था. So what I was saying is, like, see, there are two different ways, we could access the entities inside this. For example, if this table, if this table is having 100 records, there are two different ways we could access this table. One is from user interface. And the second is SQL queries. Now, what is different between these two techniques? Let me show you that. So first of all, log in into your org. I almost forgot क्या पढ़ाना है. होता है कभी कभी. See, for example, what I was telling, position is an object. Position is, of course, a table. Here,
if I click this all button, you see there are 15 records inside what? Inside position object or position table, whatever you wanted to say. It's one and same thing, right? So how many records are there? There are 15 records. Now that is what I was saying. Okay, if you see that there are there are 15 records. There are 15 records. One record means one row, and then second, and then third, fourth. Like this, fifth, and the sixth, seventh, like this. There are 15 different records inside the position table. Now, how could I access this? How could I access it? So there are two different ways to do this. There are two different ways. The first one is the most simplest one, by going with the user interface. By going with this user interface. This is the first way to access the records. Okay, here you see there are altogether there are 15 records, and then you could customize this table also. This. Okay, if presently what I'm looking, this table shows me the name. This table shows me the name as a first column. The second column is like hiring managers, whatever, and then we know then how we could customize this. We know this how to customize and everything over here. तो ये हमने सीख रखा है. This we know everything. ये जानते हैं हम लोग. We could bring the columns. We could bring the columns. Hiring manager को हटा के कुछ और भी ला सकता हूँ मैं यहाँ पे. Whatever, we could bring the columns. Just expand the force.com quick access menu and click on edit columns. Now this all interfaces. This. आप यहाँ से जितने चाहे columns यहाँ पे add कर सकते हो. Right? You could do that. अब देखो, this is the first way to access records from table. This is the first way to access the record from the object. ठीक है. ऑब्जेक्ट मीन्स योर टेबल बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो, database.com बोलो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. ये क्या कहते हैं, ये टर्मिनोलॉजीज में स्टक मत हो जाओ, टर्मिनोलॉजीज में मत घूमो. It's all one and same thing. If I say the position as an object, if I say position, if I call position as a table, so it doesn't make any difference. It doesn't make any difference. हाँ, internally हमको पता है कि if I'm telling the table, if I'm saying this as a table, if I'm saying this as a table, rather I'm referring it from database.com की नजरिए से बात कर रहा हूँ. If I'm saying this as an object, तो I'm actually force.com platform की perspective से उस नजरिए से बात कर रहा हूँ. But these all are one and same thing to us, because अभी अपन admin से हट गए हैं, development पे आ चुके हैं. Now we are going to enhance our knowledge also. तो अभी कैसा है कि you call this as an object, you call this as a table, it's one and same thing. That doesn't make any difference at all. Okay, so there are two different ways you could access records from the object, from any of the object. The first one is user interface. What is right now onto your screen? That's user interface. The second is SOQL. The second is SOQL. Now, what is the difference? And advantages, disadvantages के point of view से बोलूँ तो मेरे ख्याल ज़्यादा सही रहेगा कि क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है. यहाँ पर क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है SOQL के साथ, आओ वो डिस्कस करते हैं. The first advantage with your user interface is non-coding. Just mouse click. You click the mouse from here, somewhere, and you get the object, and you get the record. तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो यहाँ पर है वो क्या है आपका, नॉन कोडिंग पार्ट. बराबर, नॉन कोडिंग माउस नेविगेशन है जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हो. एंड इफ यू वांटेड टू ओपन, आप ओपन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो ना, एवरीथिंग यू कुड डू इट. This is the biggest advantage I consider. लेकिन अब ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि whatever the operation here you wanted to perform, you can perform it just on one record at a time. For example, if this is a record, contact creation, I could open the record, I can see the record. If I wanted to edit, I press this edit button. Then I could edit this record. But this record could be edited, and one record at a time could be edited. That's what the thing. That's what the drawback. Now see, for example, if I go to the hiring managers, we have, let me see how many records we have. So we have almost, like 450 record करीब, almost 464 records that we are having. Now if I ask you to make some addition, that I wanted to change the location of all 464 records to Nagpur, because we can see some of the records are Nagpur, Pune, Bangalore, these are Pune maximum. So if I see this, now I give you a task that I wanted to edit and make the changes in all 464 records. And what is the change that I'm asking you? I wanted you to change the location of every 464 record and make it Nagpur. And if you are following this navigation, that means if you're trying to do this from this user interface, what will you gonna do? आप एक एक रिकॉर्ड पकड़ोगे, उसको चेंज करोगे इस तरह से.
make it Nagpur and then save it. Then you go to this record, यहाँ Bangalore दिख रहा है, you make it Nagpur and save it. You go to Pune, this record, you make it Nagpur and then you save it. This is what the drawback. That means this technique is not suitable. This technique is not suitable whenever we wanted to perform any operation on bulk record. Whenever you wanted to perform any operation, it could be insertion, updation, deletion, whatever. Any DML, data manipulation, any DML, data manipulation. If with the user interface, if you're trying to do this, if the user interface you are trying to do this, then one record at a time can be done, maximum, not more than that. So if this is an operation where we are required, where we are required to perform operations in bulk of data, this is not the technique we could follow. Then we actually go with where we go with the programming. And the same thing, I even have explained you when we were discussing DML operation. That time also we have taken this discussion. ये अपना हो चुका है इसके पहले. वो DML जब मैंने फर्स्ट टाइम इंसर्ट स्टेटमेंट जब आप लोगों को बताई मैंने, वो दैट टाइम ऑल्सो वी हैव टेकन दिस डिस्कशन. उसके बाद में बल्किफिकेशन अभी जो समझाया था, बल्किफिकेशन के लिए भी आपको ये सेम डिस्कशन लिया था, आज एसक्यूएल पे भी ले रहा हूं. तो अब कैसा है कि इफ दिस इज द टेक्निक, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक विथ विच यू कुड एक्सेस डेटा, है ना, दिस इज द टेक्निक, ये एक तरीका है. This is one of the way we could access the data from table. The second way is, without involving the front end part. Sorry, not this. Without involving the front end part, we could directly interact with the database table. That way is firing the SOQL query. It's a query language. QL stands for query, but this language is tightly, integrated with the objects of the Salesforce. This language SOQL, you could only use this inside the Salesforce, nowhere else you can use this language. Why? Because this language, this query language is tightly integrated with the objects of Salesforce only, and that is why the name is Salesforce Object Query language. Okay, this language work only along with what? Salesforce Object, and nowhere else is the scope to learn this particular query. You could run and see the result only on Salesforce Object. When you fire this query, when you fire SOQL, when you fire any SOQL, that will be fired on Salesforce Object, and that's going to give you result from Salesforce Object. That's what the thing. तो SOQL क्या है? SOQL बेसिकली Salesforce का अपना क्वेरी लैंग्वेज है. SOQL बेसिकली क्या है? Salesforce का अपना क्वेरी लैंग्वेज है. देखो, यू अंडरस्टैंड दिस. हमने जब SAS PAS EAS पढ़ा है ना, काफी पहले हमने SAS PAS EAS पढ़ा, तो दैट टाइम what we learn कि Salesforce is a complete package, a complete solution package. It have, it for the customer, for the clients, it have SaaS, then PaaS हमारे लिए होता है platform as a service, then EAS होता है infrastructure as a service. तो as a developer आपको तीनों पे काम करना है ना, आपको SaaS, PaaS, EAS तीनों पे काम करना है. बट कैसा है, Salesforce जो है पूरे रिसोर्सेज जो है ना वो खुद प्रोवाइड करके देता है आपको. दैट मीन फ्रंट एंड बैक एंड बोथ. जैसे हमने एक और डिस्कशन, ये जब फर्स्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर, क्या आई वाज टेलिंग कि देखो यूजुअली एप्लीकेशंस कैसे डेवलप होते हैं जावा में या कोई भी अच्छी गुड टेक्नोलॉजी में, कैसे कि देयर इज अ टीम, फ्रंट एंड टीम जो फ्रंट एंड बनाती है, यूजर इंटरफेसेस बनाना जिसका काम होता है, टिपिकल यूजर इंटरफेसेस बनाना. फिर एक दूसरा टीम होता है जो यूजर इंटरफेस को मैप करता है डेटाबेस टेबल के साथ, कि यूजर इंटरफेस पे जितनी एंटिटीज क्रिएट करता है वो, है ना, उतने कॉलम्स यहाँ पे वो क्रिएट करता है, सो दैट कि अगर यहाँ कोई पर्सन एंटर करता है, कुछ यहाँ एंटर करता है, यहाँ एंटर करता है, यहाँ एंटर करता है और सेव बटन को हिट करता है, तो ये सारी जो फील्ड वैल्यूज है, these all field value must go to the respective columns. That's why. तो ये एक टीम होता है, बैकएंड का टीम बोलते हैं जिसको, डेटाबेस का टीम बोलते हैं. ये लोग होते हैं ओरेकल वाले, एसक्यूएल वाले, है ना, PLSQL, MongoDB, ये सब अलग अलग डेटाबेसेस हैं, उनके एक्सपर्ट्स होते हैं. फिर एक टीम होता है आपका बिजनेस लॉजिक वाला. बट सेल्सफोर्स में कैसा है ना, सेल्सफोर्स में वी आर रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइन दिस. When we design this, table is automatically created. Business logic class is automatically written. हाँ, here you could make certain changes. अभी आप वही तो सीख रहे हो, आपने क्लासेस लिखना सीखा, तो बिजनेस लॉजिक क्लास आप अपना भी बना सकते हो. यहाँ पे आप चेंजेस नहीं करते हो. You could only access this. ठीक है, दैट्स व्हाट आई थिंक. तो सेल्सफोर्स कैसा है ना, सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है अपना खुद का क्वेरी लैंग्वेज. सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है आपको अपना खुद का क्वेरी लैंग्वेज, क्योंकि सेल्सफोर्स का डेटा भी तो सेल्सफोर्स के पास ही है.
अगर देखो, अगर बैकएंड पे एक इमेजिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर बैकएंड पे ये चीजें से ये डेटाबेस पे अगर सेल्सफोर्स मान के चलिए कि यहाँ डेटा सेल्सफोर्स का अपना डेटाबेस डॉट कॉम जैसा कुछ नहीं होता फॉर एग्जाम्पल, और सेल्सफोर्स जो है ओरेकल वगैरह से डेटा जो डेटाबेस वाला जो पार्ट है वो एक्सेस करता, वो ओरेकल को हायर करता है और ओरेकल को पैसा दे रहा होता कि ठीक है आप मेरा डेटा स्टोर करो। ठीक है, तो अगर ऐसा होता होता, पहली बात तो डेवलपर अकाउंट नाम से कोई चीज ही नहीं होती थी, बिकॉज डेवलपर अकाउंट का डेटा स्टोर करने के लिए मतलब आप फ्री में बनाओ और सेल्सफोर्स ओरेकल को पैसा दे, तो ऐसा कंसेप्ट नहीं हो सकता था। सो ऑब्वियसली फिर क्या होता, सैप सैप की कीमतें इसलिए तो ज्यादा है, आप कोर्स भी करने जाओगे तो 3.5-4 लाख रुपए लगते हैं। क्यों लगते हैं? बिकॉज वो सामने वाले के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, सामने वाले पर्सन को, तो उसमें डेटाबेस का लाइसेंस भी लेना पड़ता है उसको भले ही आपके लिए एंड से आप ट्रेनिंग ही कर रहे हो, लेकिन जो डेटा आप टेस्ट डेटा जनरेट कर रहे हो वो डेटा कहाँ जाके स्टोर होगा, तो उसके लिए वो परचेस करेगा। तो ये होता था अगर सेल्सफोर्स में, अगर सेल्सफोर्स ने मान के चलिए डेटाबेस डॉट कॉम नहीं होता, सेल्सफोर्स के पास खुद के सर्वर्स नहीं होते, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ईआस, अगर ऐसा होता तो सेल्सफोर्स प्रोबेबली ओरेकल से टाइप करता था। वैसे भी मार्क बेनियोफ जो है वो ओरेकल के ही पास एम्प्लॉय थे, मतलब वो एक जमाने में ओरेकल में ही हुआ करते थे, मार्क बेनियोफ जो कि सीईओ है सेल्सफोर्स के। तो उनका अभी कैसा है कि तू मैं भाई भाई, तो मैं भले तेरी ऑर्गेनाइजेशन था, आज मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, चल मेरा डेटा तेरे को दे दिया। तो जो क्लोजेस्ट मोस्ट पॉसिबिलिटी मेरे को नजर आती है वो तो यही है कि अगर सेल्सफोर्स के पास अपना डेटा डॉट कॉम नहीं होता, डेटाबेस डॉट कॉम, तो प्रोबेबली सेल्सफोर्स ने ओरेकल को ही हायर किया होता। तो फिर आपको भी यहाँ डेवलपर अकाउंट जैसी कोई चीज नहीं मिली होती थी। इवन यू सपोज टू रिक्वायर, हमको पे करना पड़ता था, हम आपसे फीस लेते थे, इनडायरेक्टली आप ही ने पे किया रहता था। तो अगर ओरेकल रहता, अगर बैकएंड पे ओरेकल रहता ना, तो आप एसओक्यूएल नहीं पढ़ रहे होते थे, आप एसक्यूएल पढ़ रहे होते थे, बिकॉज ओरेकल डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जो लैंग्वेज है वो एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। लेकिन ऐसा नहीं है, फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। तो सेल्सफोर्स का अपना खुद का डेटाबेस है, तो अपना खुद का डेटाबेस है, इसलिए अपनी खुद की क्वेरी लैंग्वेज भी है, और उस लैंग्वेज का नाम है SOQL, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। तो ये बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन है कि व्हाट एग्जैक्टली इज SOQL। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज SOQL। चलिए, सो अलग अलग तरीके से समझाया मैंने, बस और कुछ नहीं है। बात मुद्दे की वही है कि whenever we wanted to access data, if we wanted to access any data to fetch the record, we must have a query, we must have a query, that's what the thing। चलिए, तो अब चलो, अब टेक्निकल पे आ जाते हैं सीधा सीधा, काफी थ्योरी हो गई। देखो यार, एसक्यूएल क्वेरीज है ना, एसक्यूएल क्वेरी हमेशा स्टार्ट होती है सिलेक्ट स्टेटमेंट से। ठीक है, सिलेक्ट, ये ऐसा फॉर्मेट है जो मैं चाहता हूं तुम सभी लोग याद कर लो। दीज आर समथिंग कॉल्ड एज क्लॉजेस। क्लॉजेस बोलते हैं, वेयर क्या है, एक क्लॉज है। ग्रुप बाय क्लॉज, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट, ऑफसेट, फॉर अपडेट एंड ऑल रोज। These are what? These are the clauses. We insert clauses into select statement. We insert format, basically बहुत simple है। format इतना सा है, format जो, अरे क्या हो गया, format जो है ना, format इतना सा ही है, format actually इतना ही है, select from, बस। format बहुत छोटा है, from के बाद में आता है ऑब्जेक्ट नेम, और select के बाद में आती है आपको कौन कौन सी फील्ड्स का डेटा देखना है, कौन कौन से कॉलम देखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ अभी हायरिंग मैनेजर नेम, पोजीशन काउंट, कॉन्टैक्ट नंबर, HR email ID, location. So these are what? These are the column heads. These are the field names. So that come in front of the select statement. Okay, select, then give the field names, whatever the fields you wanted to see. ठीक है, from which object, that's what। देखा जाए तो SQL सिर्फ इतना ही है, बाकी जो है ना वो सारे क्लॉजेस हैं। Why we use clauses? We use it to filter out the result। रिजल्ट को फिल्टर करने के लिए होता है, रिजल्ट को फिल्टर करने के लिए होता है। अच्छा, एक चीज और सुनो, देखो मतलब let me try to show you something। ठीक है, एक चीज और सुनो, जिन लोगों ने डेटाबेस पढ़ रखा है ना थोड़ा बहुत, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जिन्होंने डेटाबेस पढ़ रखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, SQL structured query language allow this, structured query language allow this। ठीक है, दिस इज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, इसको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है ना, इसको अलाउ करता है, स्ट्रिक्ट को अलाउ करता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, अकाउंट व्हाट, अकाउंट इज अ टेबल, ऑब्जेक्ट टेबल एक ही है। ठीक है, अकाउंट इज अ टेबल। Select every, star means everything, select everything from the account and just display it on the screen। ठीक है,
तो जिन्होंने थोड़ा बहुत क्वेरी पढ़ रखा है, आप में से अगर कोई कंप्यूटर ब्रांच के हों और आपने शायद डेटाबेस, डीबीएमएस ऐसा कुछ पढ़ा हो, तो उन्होंने ये चीज पढ़ी है। और जिन्होंने नहीं पढ़ी सुन लो ना, क्या फर्क पड़ता है, तुमको पढ़नी थोड़ी ना, एग्जाम थोड़ी ना देना, जान लो एक चीज, जानकारी की बात बता रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में देयर इज अ वाइल्ड कार्ड स्टार एंड इट्स गोइंग टू गिव यू एवरी कॉलम, हर कॉलम का रिजल्ट प्रोवाइड करके देता है अकाउंट से। यहाँ ऐसा नहीं चलता। एसक्यूएल पे देयर इज नथिंग कॉल्ड अ स्टार, there's nothing called as star, and this is an interview question. Can we use asterisk, can we use star in SQL query? Can I write down a statement like this? The answer is no. Salesforce compiler won't allow this. System will going to give you an error for this. Okay, unidentified character star. I don't understand what this star actually means. So your compiler in the Salesforce doesn't allow this. There's nothing called as give everything to me. You always required to ask for the field names. वॉट एवर द रिक्वायर्ड, क्योंकि देखो कैसा है, वी आर डीलिंग विद अ क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी। आप मैं याद करूं, हम जब आपको जिस तरह से नेविगेशन भी सिखा रहे हैं, अगर मैं आपको बोलता हूँ गो टू सेटअप मेनू, ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल आई से कि गो टू कस्टमाइज, तो मैं आई ऑलवेज से कि एक्सपैंड द कस्टमाइज। एक्सपैंड द कस्टमाइज मींस क्लिकिंग ओवर हियर, और मैंने तुमको बोला यहां मत क्लिक करना। तो यू वांटेड टू एक्सपैंड कस्टमाइज, ठीक है, डू यू वांटेड टू एक्सपैंड द कस्टमाइज, बट फिर भी मैंने आपको ये चीज देखो शायद कभी बताई हो, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ कभी ना कभी जरूर बताई हो कि डोंट क्लिक ओवर हियर। व्हाई? बिकॉज इट्स गोइंग टू लोड अननेसेसरी पेज फ्रॉम द सर्वर। ये सर्वर से लोड हुआ है अभी अभी, और साथ में आपका ये काम हो गया, ये एक्सपांड भी हो गया, बट वी डोंट वांट दिस। व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पेज? नथिंग। सो दैट्स द थिंग, डोंट मेक अननेसेसरी सर्वर कॉल्स, दैट व्हाट आई हैव टोल्ड यू। तो ये प्रिकॉशन तो हमने यहां भी लिया था। अब जब हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, we couldn't ask we couldn't ask the compiler to send everything from the table. No, you must be precise. You must know what are the fields name you wanted to get. The data of those fields could only be printed. So जब भी हम SQL के साथ काम करते हैं ना, this first of all there is nothing called a star. There is nothing called a star. There is nothing called a star. This statement is not at all valid. The statement is not at all valid in Salesforce. SQL में चलता है, SQL पे नहीं चलता ऐसा। तो यू मस्ट बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है। तो कैसा है, देयर आर फ्यू ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस, अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो SQL के साथ जब भी आप डील कर रहे हो, तो यू मस्ट बी वेरी प्रिसाइज, यू मस्ट बी वेरी कॉशियस, because you are directly interacting with what? You are directly interacting with the database of Salesforce.com. ठीक है, तो यू आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द डेटा ऑफ द Salesforce.com. दैट मीन्स यू मस्ट बी वेरी कॉशियस। अपन हवा में तीर नहीं चलाएंगे, अभी लग गया तो तीर, नहीं लगा तो तुक्का, नहीं ऐसा नहीं करेंगे अभी, ठीक है। बिकॉज अभी जैसे 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 आप अंदर जा रहे हो ना, तो यू आर बिकमिंग मोर प्रिसाइज विद द डेटा ऑफ Salesforce। और जैसे मैं कहता हूँ कोडिंग के पीछे कोडिंग, कोडिंग के पीछे कोडिंग, मेटा डेटा बोलता हूँ ना, आगे चल के with one topic you will be directly even interacting with the metadata also, but वो टाइम तक अपना नॉलेज बहुत आगे बढ़ चुका होगा, and we know what we are handling. That time we will know कि what we are handling, how much cautious we should be. अपने हाथ में अगर न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, तो अपन ऐसा उछल कूद नहीं कर सकते, we will be very मतलब फटफुट गया तो क्या होगा, है ना, that time. तो when we are dealing with database ना, we should be very precise and cautious. So there are few of the best practices that we are also going to discuss. पहले ना फॉर्मेट देखो। तो first of all there is nothing called as select everything from this table. No, you must be very precise with the names of field. What you wanted to access, you should know what you wanted to access, and don't fetch unnecessary data. Please don't fetch unnecessary data. That's what the thing. तो syntax तो सिर्फ इतना ही है, पता है, syntax सिर्फ इतना है, select, give the name of the fields from object table name. अच्छा, ऑब्जेक्ट नेम टेबल नेम बोलो, एक ही चीज है। ऑब्जेक्ट नेम बोलो कि आप बोलो सो टेबल नेम, और ये हाँ ठीक है, टेबल नेम, इट्स वन एंड सेम थिंग, इट्स वन एंड सेम थिंग। ऑब्जेक्ट नेम बोलिए आपके, आप टेबल नेम बोलो, इट्स वन एंड सेम थिंग, ठीक है। सिंटैक्स सिर्फ इतना ही है। अब उस रिजल्ट को फिल्टर आउट करने के लिए क्लॉजेस होते हैं, तो ये क्लॉजेस धीरे धीरे करके बताऊंगा। सबसे पहले तो वेयर से स्टार्ट करूंगा मैं। कंडीशंस जो होती हैं, कंडीशंस रिजल्ट को फिल्टर करना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अकाउंट में प्रिसाइसली वो कस्टमर्स चाहिए जिनका रेटिंग हॉट है। द सेम थिंग व्हाट वी हैव क्रिएटेड विद द एनहांस लिस्ट। याद है आपको, हॉट रेटिंग कस्टमर्स, क्लिक करने के बाद में सिर्फ वो रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं जिसका रेटिंग हॉट है। दिस इज अ फिल्टर कंडीशन, दिस इज अ फिल्टर कंडीशन।
अब ये तो यहाँ तो बड़ा इजीली हो जाता सब, मतलब लाइफ बहुत आसान होती है तब तक जब तक आप एडमिन पे होते हो, क्योंकि कोड नहीं करना पड़ता। फिर जैसे ही अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना, तब होता है। अभी एक मजेदार बात बताता हूँ, इसमें काफी सारे बंदे अपने, इसलिए एक बैच है मेरी 203, ठीक है। 203 पे यार अभी क्या हो रहा है, दो बंदे मैकेनिकल के ज्वाइन हुए। अभी उनका क्वेरी, कल रात में उन्होंने मुझे फोन किया, तो उनका क्वेरी क्या था पता है क्या? वो मुझसे बोल रहे, सर हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और हम लोग जितने भी एग्जाम्पल्स आप असाइनमेंट आप देते हो, जो कुछ भी आप क्लास में यहाँ करते हो, वो हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो हमें ये लग रहा है कि मतलब क्या सेल्सफोर्स वाकई में इतना आसान है? मतलब हमें डाउट हो रहा है कि शायद आप ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ा रहे हो और अंदर की चीजें नहीं पढ़ा रहे हो। मतलब बाप रे, मतलब देखो, आप किसी को अगर किसी की लाइफ में आसानी भी क्रिएट करते हो, तो कुछ लोग जिंदगी में ऐसे फ्रस्ट्रेटेड मिलेंगे आपको, जिनको इस चीज से भी परेशानी होती है कि मेरी लाइफ इतनी आसान क्यों हो रही है, मुझे कोई चीज अगर समझ में आ रही तो इतना अच्छे से क्यों समझ में आ रही। मैं बोला देखो, सबसे पहली बात तो मैं कंसेप्ट छोड़ता नहीं हूँ, उल्टा मेरे कंसेप्ट इतने ज्यादा इलैबोरेटेड है कि जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद 1.5-2 महीने में पूरा सेल्सफोर्स पढ़ा के निकाल देने बाहर, मुझे तो 5 महीना लग रहा है, कभी कभार मुझे 6 महीने लग जा रहे हैं। तो पहली बात तो मैं इलैबोरेशन पे ज्यादा जा रहा हूँ। दूसरा, तुमको आसान लग रहा है, अब तुमको उसमें दिक्कत हो रही है, अब इसको मैं मतलब इसको तारीफ समझूं कि क्या समझूं, मैं तो कंफ्यूज हो गया था, मतलब भयानक तरह से कंफ्यूज हो गया था मैं कल रात में, कि ऐसा भी होता है दुनिया में, ऐसे भी लोग हैं। खैर, तो तो कैसा है, लाइफ बहुत आसान है तब तक जब तक हम लोग यहाँ पर हैं एडमिन पे। जब डेवलपमेंट में आते हैं ना, तब समझ में आता है, क्योंकि तब कोड करना पड़ता है। तो अभी जैसे यहाँ पे अगर मैं, इफ आई पुट दिस ऑल अकाउंट्स, तो आई कुड सी एवरी अकाउंट, राइट। सारे 36 अकाउंट जो हैं, सारे 36 रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। बट व्हेन आई पुट अप सम कंडीशंस, व्हेन आई पुट अप सम कंडीशंस, फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू सी दोस अकाउंट रिकॉर्ड हुज एक्टिव स्टेटस इज yes, I wanted to see those account records whose rating is hot. Then we, if we wanted to filter out, filter out the records, then we uses these clauses. तो उसमें सबसे पहला कॉमन क्लॉज रहेगा वेयर, फिर धीरे धीरे करके एक एक क्लॉज बताऊंगा। ग्रुप बाय किस लिए होता है, हैविंग किस लिए होता है, ऑर्डर बाय, दिस एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न। तो ये जो क्लॉजेस है ना, ये जो क्लॉजेस है ना, दे आर जस्ट फॉर व्हाट, दे आर जस्ट टू पुट अप सम कंडीशंस एंड फिल्टर आउट द रिकॉर्ड। अगर आप डायरेक्ट लगाओगे ना ये, इफ अगर डायरेक्ट ये लगाओगे, तो यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग फ्रॉम दिस टेबल। जैसे यहां पर जो मिल रहा है आपको, द सेम थिंग, इफ यू पुट दिस ऑल अकाउंट, तो ये पूरा रिजल्ट हो गया, ये पूरा रिजल्ट हो गया आपको ना, दिस इज एवरीथिंग ऑल 36 अकाउंट। बट नाउ इफ यू वांटेड टू पुट सर्टन फिल्टर्स, यानी कि मुझे वेयर वेयर द रेटिंग शुड हॉट, वेयर द अकाउंट एक्टिव स्टेटस शुड yes, वेयर द फोन नंबर शुड नॉट ब्लैंक, city equals to Hyderabad. So if you wanted to introduce such kind of conditions, then we actually go for the clauses. So this is the clauses का काम कैसा है, the clauses are used to put up the condition. And remember this, if you don't remember, write it down, because see, this everything what we are discussing, they could probably ask you this in the interview, कि what is the use of clauses. They will not ask you what is the use of where clause, group clause, वो भी पूछेंगे of course. But then अगर beginning में itself I ask you, okay, what is the use of clauses in the SOQL part, तो यू नीड टू, तब आपको बताना पड़ेगा कि द क्लॉजेस आर यूज्ड टू फिल्टर आउट द कंडीशंस, टू फिल्टर आउट द रिकॉर्ड्स, टू फिल्टर आउट द रिकॉर्ड्स, टू पुट अप द कंडीशंस, कि व्हाट एग्जैक्टली, व्हाट प्रिसाइज रिजल्ट, टू गेट द प्रिसाइज रिजल्ट, वी यूज द क्लॉजेस, दैट्स व्हाट द थिंग। ठीक है, तो ये रहेगा इसका फॉर्मेट बहुत ही छोटा है। सिलेक्ट, गिव द नेम व्हाट यू वांटेड टू सी, आई मीन दोस फील्ड्स, फ्रॉम उसी के साथ में सिलेक्ट फ्रॉम, एंड देन गिव द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड एज स्टार, सिलेक्ट स्टार, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज सिलेक्ट स्टार। ठीक है, ये याद रखो। और कुछ ऑपरेटर्स हैं, इन ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर, ऐसे काफी सारी चीजें जो है हमको कवर करना पड़ेगा। सो बेसिकली योर एसक्यूएल इज अ बिट लेंथी टॉपिक, एंड प्रोबेबली जैसे मैंने कहा था भी लास्ट टाइम कि इट्स ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड 2 वीक्स करीब करीब, नहीं तो कम से कम 1.5 हफ्ता लगना ही है इसमें। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड few of the governor limits. In a single transaction, you could maximum give 100 SOQL queries, not more than that. In a single transaction, you could maximum give 100 SOQL queries, not more than that. In a single transaction, you could maximum give 150 DML statements, not more than that. ठीक है, using a DML statement, you could maximum fetch 10,000 records. Using SOQL queries, you could maximum fetch 50,000 records. Each SOQL query can return 50,000 records.
ठीक है। अच्छा, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी, तुमको मैंने डीएमएल स्टेटमेंट बताया हुआ है। कैन एनीवन टेल मी कि डीएमएल स्टेटमेंट के मैंने बता दिया था कि ये तो 2-3 बार आप लोगों को बताया मैंने कि इन अ सिंगल transaction, in a single program maximum I could give 150 DML statements. Now if I'm trying to give 151 या फिर 200, फॉर एग्जांपल 200 रिकॉर्ड इंसर्ट करने चाहता हूं मैं, व्हाट काइंड ऑफ एरर वी गेट दैट टाइम? क्या एरर मिलता है अपने को? क्या एरर मिलता है? यस, एनीबॉडी ऑन द चैट बताओ। 200 रिकॉर्ड जब हमने इंसर्ट करने की कोशिश किया था, व्हाट काइंड ऑफ एरर वी, जो कि मैंने बताया था कि इसको नोट कर लो यार। What error we get if we try to insert more than 150 record? What is the name of that exception? Yes, anyone? Come on, come on, come on, come on, come on, guys. Anyone, anyone? What is the name of that exception? It's not 101. 101 कैसे आ सकती है? Up to 150 record you are inserting. Up to 150 you could. Error code 151. Error code 151 exactly. That's error code 151 what you get over there. और यहाँ वही system dot limit exception ही आता है. System dot limit exception ही आता है. ठीक है, वहां पे एरर कोड रहता है 151, यहाँ लिख के आता है too many SQL queries, और यहाँ एरर कोड आता है 101, यहाँ टू मेनी DML एग्जैक्टली। तो वहां जो एरर आता है दैट्स टू मेनी DML आता है, तो यहाँ पे टू मेनी SQL queries and error code is 101. So this is some of the common question they will ask you. What does it means by error code 101? 101 लोग कैसे ना फैंसी वर्ड्स, बज वर्ड्स, आईटी में कल्चर है, बज वर्ड्स बोलते हैं इनको, है ना, दे ये इसको यूज करने का बड़ा कल्चर है आईटी में। स्ट्रेट फॉरवर्ड 101 बोलना भाई, क्या प्रॉब्लम जाता है? नहीं, 101, 101 एंड यू स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज, ये क्या बोल रहा है भाई साहब? नहीं, तो ये कल्चर है आईटी का, तो तुम जरा सा अलर्ट हो जाओ। दे कुड आस्क यू व्हाट डज इट मींस बाय 101, व्हाट इज एरर कोड 101, व्हाट इज द एरर कोड 101? 1O है नहीं वो, पहली बात तो वो 1O है नहीं, द मिडल कैरेक्टर इज नॉट O, मिडल कैरेक्टर इज 0, वो ओ बोल ही नहीं सकता इसको, बेवकूफ है क्या? 100 एसओक्यूएल क्वेरी फायर होती तो अगली एसओक्यूएल क्वेरी का नाम क्या रहेगा? 101 ही रहेगा ना यार, 1O कहां से आ गया? तो खैर जान दो, उसको रेक्टिफाई मत करना, इंटरव्यू से घसक जाओगे, उसको क्लियर मत करना, उसको सिर्फ ये समझा देना कि इट्स द एरर इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन वी कुड मैक्सिमम फायर 100 एसओक्यूएल क्वेरी, इफ यू ट्राई टू फायर मोर देन दैट, if you try to fire more than that, you are going to get this error, too many SQL queries 101. That's what 101. About 151, that's related to DML. In a single transaction, we could maximum go for 150 DML statement. If you try to go beyond that, then there comes the error. Error too many DML statements 151. दोनों केसेस में इट्स व्हाट सिस्टम डॉट लिमिट एक्सेप्शन, लिमिट क्रॉस हुई है दोनों सूरतों में, है ना। आपको 101 आए चाहे 151 आए, एरर की कैटेगरी कौन सी है, एक्सेप्शन की कैटेगरी कौन सी है? सिस्टम डॉट लिमिट एक्सेप्शन। ठीक है, चलो, तो ये एक चीज हो जाती है। और थोड़ी बहुत गवर्नर लिमिट्स याद रखो। एक डीएमएल स्टेटमेंट से आप 10,000 रिकॉर्ड फेच कर सकते हो, एक एसक्यूएल क्वेरी से आप 50,000 फेच कर सकते हो। इसके बाद में और बताऊंगा मैं, 50,000 से 5 मिलियन रिकॉर्ड्स तक लेके जाऊंगा तुमको। 1 मिलियन इज 10 लाख, 1 मिलियन इज 10 लाख, 5 मिलियन इज 50 लाख। In a single query, how could you fetch 50 lakh character, 50 lakh records? वो भी आपको बताऊं। ये मत सोचो कि दिस इज और ये बहुत अच्छी कैपेसिटी है 50,000, ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग इन रियल टाइम, दिस इज नथिंग, आई एम टेलिंग यू दिस, 50,000 कुछ नहीं है, 50,000 रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। आप सोच रहे हो अभी अभी कैसे ना, बच्चे को, छोटे बच्चे को दुनिया बहुत बड़ी लगती है, तो अभी जैसे जैसे बड़े होते जाते हो सब कुछ छोटा हो जाता है। ठीक है, तुमको पहले अपने घर से, आंगन से थोड़े मोहल्ले में जाने में डर लगता है, फिर धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारे लिए छोटा होते जाता है। तो 50,000 रिकॉर्ड्स जो है ना, कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग नाम पे कंसेप्ट पढ़ेंगे अपन। ठीक है, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग से यू कुड अप टू फेच 5 मिलियन ऑफ रिकॉर्ड एक ही बार में, एक ही क्वेरी फायर करेंगे, एक क्वेरी 5 मिलियन, 50 लाख रिकॉर्ड एक ही बार में लेके आएंगे। डेटा माइग्रेशन अगर कभी लाइफ में मौका मिलेगा ना काम करने का, तो तुम वो प्रोग्रामिंग करोगे। अपेक्स बहुत डीप है, बहुत पावरफुल है, और ऐसी ऐसी चीजें अपेक्स में जो बाकी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोर्ट ही नहीं करता, इतनी अच्छी चीजें। और कैसे ना अपन जिस रफ्तार से अपन लोग पढ़ रहे हैं ना, धीरे 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 धीरे, ये बड़ी मजेदार रफ्तार है। मतलब मुझे तो बड़ा कंफर्टेबल लगता है, एक एक कंसेप्ट पकड़ो और अच्छे से बात करो। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। एनीवेज, तो 50,000 रिकॉर्ड एक एसक्यूएल से आप एक प्रोग्राम में, एक एसक्यूएल
ईच एसक्यूएल क्वेरी कैन रिटर्न अप टू 50,000 रिकॉर्ड, ऐसा ये कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए दूसरी बात कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्योंकि फोन साइलेंट करता है। हाँ चलो, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देखिए कैसा है। डेटाबेस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। डेटाबेस के साथ अगर आप यूजर इंटरफेस के थ्रू जा रहे हो यहां से, तो सारे वैलिडेशंस, सारी गवर्नर लिमिट्स, सब कुछ सिस्टम मैनेज कर रहा है। ठीक है, सब कुछ सिस्टम मैनेज कर रहा है, बिकॉज आप फ्रंट एंड के थ्रू जा रहे हो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जा रहे हो ना, अगर आप डायरेक्ट जा रहे हो, डेटाबेस का दरवाजा खुद से ठकठका रहे हो एसक्यूएल से, तब आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। तो दे आर फ्यू ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस, और वो हमें इंप्लीमेंट करनी है अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये जरूरी है। तो पहली चीज, एसक्यूएल क्वेरीज को कभी भी लूप के अंदर नहीं लेंगे आप, कभी भी लूप के अंदर नहीं लेंगे। ठीक है, कभी भी इसको लूप के अंदर नहीं लेंगे, लूप कोई भी। अब मैंने फॉर लूप लिख दिया वो अलग बात है, जनरली ना फॉर लूप यूज करते हैं। तो वो याद होगा जब मैं लूप्स पढ़ा रहा था, मैंने आपको वाइल पढ़ाया, डू वाइल पढ़ाया, फॉर पढ़ाया, एनहांस फॉर पढ़ाया। बट एनहांस फॉर पढ़ाने के लिए पहले मुझे अरेज पढ़ाने पड़े आपको, क्योंकि एनहांस फॉर लूप जो होता है वो कलेक्शन पे लगता है। अभी जितने कलेक्शंस पढ़े ना आपने, लिस्ट, सेट, मैप, इनको जब भी एक्सेस करेंगे तो एनहांस फॉर लूप के थ्रू करेंगे अपन, राइट। 4 तरह के लूप्स होते हैं, वाइल, डू वाइल, फॉर, एनहांस फॉर, बस, ज्यादा नहीं। अच्छा, वाइल डू वाइल जनरली यूज नहीं होता है, और किसी को प्रैक्टिस है तो अलग बात है। मैंने तो देखा है ज्यादातर जितने भी लोग यूज करते हैं फॉर और एनहांस फॉर लूप सबसे ज्यादा है, कुछ फॉर लूप है। तो हम जितनी भी एसक्यूएल क्वेरीज बनाएंगे ना, वी विल नेवर पुट एनी एसक्यूएल क्वेरी इनसाइड अ लूप, वी विल नेवर पुट एनी एसक्यूएल क्वेरीज इनसाइड अ लूप। अगर आप ऐसा करोगे ना, अगर आप ऐसा करोगे तो आप द चांसेस आर मोर ब्राइट कि यू आई मीन यू आर गोइंग टू हिट द एक्सेप्शन, यू आर गोइंग टू हिट द एक्सेप्शन, द चांसेस आर वेरी ब्राइट। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, एज एन बेस्ट प्रैक्टिस, एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है, वी विल नेवर राइट एनी एसक्यूएल क्वेरी इनसाइड द लूप, लूप के अंदर कभी नहीं लिखेंगे हम लोग। वी विल मेक द यूज ऑफ बल्किफिकेशन। बल्किफिकेशन जो तुमको सिखाया है मैंने, कि तुमने सोचे कि ये तो एक टॉपिक है, नहीं, दैट वाज अ बेस्ट प्रैक्टिस। बल्किफिकेशन जो मैंने तुमको पढ़ाया कि राइट एन अपेक्स प्रोग्राम टू इंसर्ट 250 रिकॉर्ड्स इनसाइड लीड, 400 रिकॉर्ड इनसाइड कॉन्टैक्ट, 400 200 record inside hiring manager. How many DML statement we have used? Only one DML statement insert. Why? Because we haven't written this DML inside the loop. Loop के अंदर नहीं लिखा मैंने। Loop कहां से कहां तक चल रहा है? 1 to 200, 1 to 200 loop चल रहा है। I created the records, I created the records, I added them into the collection. lsthr record dot add. Add is a function. दिस फंक्शन इज देयर इनटू लिस्ट कलेक्शन, सेट कलेक्शन। अगर ये मैप होता तो मैं पुट लिखता यहाँ पे, lsthr records dot put, अगर ये मैप कलेक्शन होता तो। और 2 पैरामीटर देता है यहाँ पे एक ही पैरामीटर दिया मैंने, वहां 2 देता मैप कलेक्शन में, एक होता इंडेक्स, दूसरा होता वैल्यू। और उसके बाद में आई व्हाट आई डिड, आई इंसर्टेड ऑल 200 रिकॉर्ड इनटू कलेक्शन, कलेक्शन में इंसर्ट किया, और कलेक्शन से बाद में पूरा कलेक्शन ही उठा के इंसर्ट कर दिया। Using one DML, we were able to insert 200 record. At max, how much I could insert? 10,000. 10,000 record we could insert. That's what the capacity of DML. तो यहाँ पे हमने DML को लूप से बाहर निकाला, लूप यहाँ से लेके यहाँ पर है, लूप यहाँ से लेके यहाँ पर है, DML को हमने बाहर निकाल लिया। Same we are going to follow with the SOQL also. SOQL will also, we never put SOQL inside this. SOQL को भी हम ना लूप के अंदर कभी नहीं लाएंगे, SOQL को भी लूप से बाहर ही रखेंगे। ठीक है, as a best practice we are going to follow this. The second, this was the first thing, the first thing. The second, don't fetch, ठीक है, don't fetch the unnecessary data, don't fetch the unnecessary data, कभी भी ना unnecessary data fetch नहीं करो, don't fetch the unnecessary data, what's happening anyway। तो
जितनी जरूरत है ना उतना ही डेटा बुलाओ एसक्यूएल से। क्योंकि कैसा होता है, लेट मी टेल यू, व्हेनेवर यू फायर एन एसक्यूएल, whatever the records that are going to be fetched from this object, जो ऑब्जेक्ट से टेबल से जो भी रिकॉर्ड आएंगे, दे आर गोइंग टू ऑक्यूपाई अ मेमोरी कॉल्ड एज हीप मेमोरी। दे आर गोइंग टू ऑक्यूपाई मेमोरी कॉल्ड एज हीप मेमोरी। ठीक है, एंड दैट मेमोरी हैव अ लिमिट, उसकी अपनी एक लिमिट है, 6 M, 6 MB, 6 MB इज द लिमिट। 6 MB इज द लिमिट हीप मेमोरी कि व्हेनेवर यू फायर एसक्यूएल से जो रिकॉर्ड आता है, दे आर इनिशियली गोइंग टू बी अलॉटेड इनटू अ मेमोरी, एक मेमोरी में स्टोर होता है। वो मेमोरी बड़ी कॉमन है, ये नाम आपने काफी पहले से सुना हुआ है, हीप मेमोरी। कौन सी मेमोरी? हीप मेमोरी। इसकी अपनी कैपेसिटी है 6 MB, उसके ऊपर नहीं। एक प्रोग्रामिंग आएगी जहां पे इसको 12 MB कैसे करना बताऊंगा आपको, वो भी बताऊंगा आपको कि गवर्नर लिमिट को बाईपास करके इसको डबल कैसे करना, वो भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। बट अभी नहीं, अभी तो जो बेसिक अपने को पता है उसी पे बात करेंगे। तो बेसिक ये है यार कि अभी जितना भी डेटा तुम फेच करके लाओगे ना, दे आर गोइंग टू बी स्टोर्ड इनसाइड अ मेमोरी कॉल्ड एज हीप मेमोरी, और उसकी कैपेसिटी 6 MB है, सिर्फ 6 MB। इसीलिए अननेसेसरी डेटा फेच मत करो। एंड पहली बात ये तो है ही नहीं, ये इसीलिए नहीं है यहाँ पे सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द अकाउंट, नहीं, हो ही नहीं सकता। यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलता। यार यू शुड बी वेरी प्रिसाइज अबाउट द नेम्स ऑफ फील्ड, कि आपको एग्जैक्टली फेच क्या करना है, वो सब चीजें। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स को याद रखो। पहली बात, हम कभी भी एसक्यूएल को लूप के अंदर नहीं लेंगे। दूसरी बात, हम कसम खाते हैं कि अपने अपने मोबाइल पे हाथ रखो, सब लोग कसम खाओ कि हम लोग कभी भी अननेसेसरी डेटा फेच नहीं करेंगे। सब अपने मोबाइल की कसम खाओ रे भाई। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद है वेज टू इन्वोक द एसक्यूएल। एसक्यूएल को कैसे इन्वोक करना, इसमें दो तरीके हैं, क्वेरी एडिटर, बेसिक क्वेरी यहीं से बन जाएगी, और दूसरा फिर धीरे धीरे करके आप पहले इसको इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, कुछ दिन तक इसको यूज करेंगे, बाद में हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे जो है, एक मिनट, एक ये लो, बाद में हम ना इसको ओमिट कर देंगे। हर बार क्वेरी एडिटर पे जाके क्वेरी टाइप करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसको यूज करेंगे स्टार्टिंग में, और फिर अपेक्स प्रोग्रामिंग डायरेक्ट। ठीक है, अब चलो, तो मैं क्वेरी एडिटर के थ्रू ना तुमको बेसिक एसक्यूएल वाला पार्ट आज ही कवर करके देता हूँ। ठीक है, चलिए भाई, सो लेट्स गो टू द डेवलपर कंसोल। So let me close everything. अब ये नीचे का रिबन जो है इसको एक्सपैंड करो, यहाँ पे देखो एक क्वेरी एडिटर नाम की चीज है, यहाँ पे वी शुड राइट डाउन द क्वेरी। ठीक है, वी शुड राइट डाउन द क्वेरी। पहले मैं क्वेरी लिखवाता हूँ, उसके बाद उससे दूसरा तरीका बताता हूँ। पहले क्वेरी लिखते हैं हाँ? और बाद में आपको दूसरा तरीका बताते हैं जो सबसे सिंपल तरीका है, और पूरी क्वेरी भी बन के तैयार हो जाएगी, अपने आप बन के तैयार हो जाएगी, जैसे इंटेलिजेंट फीचर ओवर किया। ठीक है, आइए पहले तो मैं टाइप कर लेता इसको, चलो सिलेक्ट। ठीक है, कैसा स्टेटमेंट है, सिलेक्ट फ्रॉम, गिव द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अकाउंट, यहां से मुझे डेटा लाना। अब यहाँ पे मैं दूंगा फील्ड्स नेम, यहाँ पे फील्ड्स नेम दूंगा कि मुझे क्या क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल आईडी, नेम, रेटिंग। ठीक है, उसके बाद में फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री। ठीक है, अच्छा दिस इज नॉट केस सेंसिटिव, हाँ आप ऐसा भी कर सकते हो, दिस इज नॉट केस सेंसिटिव। ये आप चाहो तो फील्ड्स के नाम ऐसे दो, चाहे आप ऐसा दो, इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल, रेटिंग, इंडस्ट्री, एंड देन फॉर एग्जांपल एनुअल रेवेन्यू, है ना, ट्राई टू लाइक गिव इट लाइक दिस, REVE NUE एनुअल रेवेन्यू। ठीक है, या फिर आप ऐसा दो, फर्स्ट कैरेक्टर एक्टिव स्टेटस अंडरस्कोर, ये बिकॉज एक्टिव स्टेटस जो आपकी कस्टम फील्ड होती है एक्चुअली, है ना, तो ट्राई टू गिव इट लाइक दिस। क्या बोल रहा है, एनुअल रेवेन्यू, वो तो क्या, डिसमिस, डोंट वांट दिस। ठीक है, वंस यू क्रिएटेड द क्वेरी, देयर इज अ बटन एग्जीक्यूट करो। ठीक है, देखो जैसे एग्जीक्यूट हुआ पूरा यहाँ पे आपको रिजल्ट आ गया, यू सी द रिजल्ट, दिस इज व्हाट द रिजल्ट, आईडी, नेम, रेटिंग, इंडस्ट्री, एनुअल रेवेन्यू, दिस होल रिजल्ट हैज बीन डिस्प्लेड। ठीक है, ये पूरा रिजल्ट आ गया। पहला कॉलम क्या है इसमें, आईडी, let me trivialize this format. The first column is ID, ठीक है, the second column is name, the third column is rating, then industry, ठीक है, and then annual revenue and active status। ठीक है,
Here some more things you have. How many records are there? Total 36 records are there. ठीक है, total 36 records are there. You can minimize this ribbon and you can see these records are there. तो ये है एक तरीका. दिस इज हाउ वी राइट डाउन दी एसक्यूएल क्वेरीज. ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे अपन, डोंट वरी. मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ उसका. किस लिए टाइप करना, आई शो यू समथिंग. ठीक है, आई शो यू समथिंग. लेट मी open any of the object. Let's open the contact. Let's open the contact. Make a double click. ठीक है, contact ऑब्जेक्ट आया, उसकी सारी फील्ड्स आ गई. ठीक है, उसकी सारी फील्ड्स आ गई. अब अपना सिलेक्ट करो आईडी, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना, माउस से क्लिक करते जाना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम. ठीक है, और जैसे कि मेलिंग सिटी स्टेट कंट्री, और जैसे कि फोन फैक्स, और जैसे कि ईमेल आईडी. ठीक है, और कुछ और कुछ और कुछ और. आई थिंक इतना काफी है ना. और कुछ है क्या, अदर एड्रेसेस, नहीं ठीक है, इतना. एंड देयर इज अ बटन वंस यू सिलेक्ट, यू नो कौन कौन सी फील्ड्स देखनी है आपको. वंस यू हैव सिलेक्टेड दैट, या नीचे एक बटन है देखो, क्वेरी. ठीक है, क्वेरी, दिस अ बटन क्वेरी. सी, जैसे ही आपने क्वेरी का बटन प्रेस किया, ये देखो आपकी पूरी क्वेरी बन के तैयार हो गई अपने आप. तो टाइप करने की जरूरत नहीं है शुरुआत के कुछ दिनों में. When you are getting familiar with like how to write down the query, we will be using this query editor for this. And the same thing, after the query has been created, ना query has been created, इसको ना आप आगे चल के क्या करोगे पता है, आप इसको ऐसे सिलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे, और जहां भी आपको प्रोग्रामिंग पे इसकी जरूरत है वहां ले जाके पेस्ट करोगे. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ठीक है, बट लेटर ऑन. अभी क्या करने वाले हैं आप लोग, लाइक अभी जैसे क्वेरी बन गई ना, अभी एग्जीक्यूट करो तो देखो यहाँ पे रिजल्ट आ गया. तो बेसिकली कैसा है ना, क्वेरी भी लिखनी नहीं पड़ती अपने को. बेसिक क्वेरी जो है ना, वो क्वेरी एडिटर बना के दे देता है आपको. ये जो आपकी बेसिक क्वेरी है ना, ये क्वेरी एडिटर ही बना के दे देता है आपको. आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉलम से मैंने डेटा फेच करना है, नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मेलिंग सिटी वगैरह वगैरह, वो पता रहना चाहिए. वो आपने पता कर लिया तो ये पूरी क्वेरी आपकी बन के तैयार होती है. तो टेक्निकली ना इसको भी टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती. यहां पर भी सेल्सफोर्स ने अपने लिए एक आसानी कर रखी है. आपको पता होना चाहिए इसका टूल है. जैसे ये मर्ज फील्ड याद आया तुमको, जब हमने ईमेल टेम्पलेट्स बनाया था, मर्ज फील्ड्स, मैंने हालांकि फॉर्मेट जरूर सिखाया तुमको मर्ज फील्ड का, लेकिन कहा था मैंने इसको बनाना नहीं पड़ेगा, इसका टूल अवेलेबल है सेल्सफोर्स में. तो टूल है तो टूल को यूज करो, है ना. टूल को अननेसेसरी टाइपिंग पे मत जाओ. तुमको टाइपिस्ट थोड़ी ना बनना है यार, तुमको टाइपिस्ट थोड़ी ना बनना है बेसिकली. ठीक है, तो टूल है इसका. क्वेरी को बनाने के लिए भी टूल है अपने पास में, दैट इज क्वेरी एडिटर. So what we are going to do, we will be in the few starting days we will be using this only. धीरे करके ना हम लोग familiar हो जाते हैं. ठीक है, but in our initial days तो we are going to make the use of query editor. तो मैं basic query जो है यहाँ से बनवा के लूंगा और उसको फिर अपने प्रोग्राम पे कॉपी करके पेस्ट करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा. This we are going to use. ठीक है, चलो. तो अभी try to I don't know, let me see whether I have few examples over here or not. तो एक बार मैं देख लेता हूँ. हाँ, तो यहाँ देखो कुछ एग्जांपल्स हैं. राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच द अकाउंट आईडी नेम रेटिंग, है ना. तो उसके लिए ये क्वेरी है. तो डोंट ट्राई टू टाइप इट, ये टाइप मत करो. ये क्वेरी एडिटर पे ये सारी क्वेरीज बनाओ. सारी क्वेरीज जो है क्वेरी एडिटर पे बनाओ. मेक द यूज ऑफ क्वेरी एडिटर फॉर दिस. क्वेरी एडिटर पे ये सारी क्वेरी बनाओ और एग्जीक्यूट करो. आज इतना कर लो. उसके बाद में from tomorrow we are going to start with the types of query. There are two types, static and dynamic. So by tomorrow we are going to start with the types of query. Static query जो है वो कल से शुरू करता हूँ. आज जरा सा इतना, ये कुछ एग्जांपल्स है अपने. इसको टाइप नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूँ. ठीक है, किसी को अकाउंटेंट बनना है तो वो छोड़ दो, एक कोर्स. टूल्स यूज करना सीख लो. ठीक है, तुम में से किसी को बाबू बाबू बनना है, प्यून व्यून बनना है, तो वो ये कोर्स नहीं तुम्हारे लिए. टैली वैली कर लेना. ये कोर्स स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो टूल्स को यूज करना जानते हैं या सीखना चाहते हैं. तो प्लीज टाइप नहीं करना, जब तक मैं बोलूं तब तक टाइप नहीं करना. जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, लोकेट दिस ऑब्जेक्ट, है ना, इन द डेवलपर कंसोल, एंड देन ट्राई टू यूज दी अपना क्वेरी एडिटर पार्ट. उससे क्वेरी बनाओ, एग्जीक्यूट करो और रिजल्ट देखो. सिर्फ इतना करो आज के दिन. कल हम इसके आगे बढ़ते हैं.
टाइप्स ऑफ क्वेरीज के साथ। ठीक है, चलो भाई स्टॉप।